ایک ضعیفہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی اور جا کر کے ڈاکٹر کو ہاتھ دکھایا نا تو وہ اس ضعیفہ کو کمزوری تھی. ڈاکٹر نے دوائی کی پڑیا بنا کے کہا ماں گھر جا کے تھوڑے فروٹ بھی کھا لینا, تھوڑا سا دودھ پی لینا. اس ماں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور ڈاکٹر کے سامنے گردن کو ہلا دیا. اس کی آنکھوں کے آنسو بتا رہے تھے ڈاکٹر تو فروٹ کی بات کرتا ہے, میرا بیٹا مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتا. اے ڈاکٹر تو دودھ کی بات کرتا ہے, میں بیٹھ جاتی ہوں چل نہیں پاتی, اگر پھندا بھی لگتا ہے پیاس کی شدت ہوتی ہے, میرا بیٹا ایک گلاس پانی نہیں پلاتا. ارے نادانو تمہیں سوچنا چاہیے, جس ماں نے اپنا لہو پلا پلا کے تمہیں پربھان چڑھایا ہے, آج ماں کی خاطر تھوڑے فروٹ نہیں کھلا سکتے؟ آج ہم ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, آج ہمیں والدین کی فکر نہیں. انسان کچھ بھی کہہ دیا کرتا ہے ماں کو. اللہ الصمد, آؤ تمہیں بتاتا ہوں, مدینے کا سلطان ہے اس نبی کی بات بتا رہا ہوں جس نبی کا کلمہ پڑھ کر میں اور آپ مسلمان ہوئے ہیں. اگر نبی کی بات سے انکار کر دو نا, تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن مسلمان نہیں ہو سکتے. کہنے والے نے کہا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ الصمد نبی کے صحابی ہے, نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں, نبی کے صحابی نبی کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے, رات کو سجدے کیا کرتا ہے, رات بھر نمازیں پڑھا کرتا ہے, دن کو روزہ رکھا کرتا ہے, اسے میری فکر نہیں ہوتی, وہ میری طرف توجہ نہیں کیا کرتا, وہ میری فکر نہیں کرتا, وہ میری خدمت نہیں کرتا, میری خیر خواہی نہیں کرتا, مجھ سے میرے حالات کو نہیں پوچھتا, راتوں کو سجدے کیا کرتا ہے, رات پر تہجد میں پڑھا رہتا ہے, نمازیں پڑھتا رہتا ہے, دن کو روزے سے رہا کرتا ہے, میری فکر نہیں کیا کرتا, میری خیر خواہی نہیں کیا کرتا. اللہ الصمد مدینے کا سلطان کہتا ہے, نبی آخر الزما کہتے ہیں, پیغمبر اسلام نے کہا اے میرے صحابی جاؤ اپنے بیٹے سے کہہ دینا اگر بیٹے سے باپ راضی نہیں ہے اس کے سجدے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے, نمازیں تب قبول ہوں گی جب بیٹا باپ سے راضی ہوگا. پتا چلا یہ نبی کہتے ہیں, صحابی سے کہتے ہیں جاؤ بیٹے سے کہہ دینا اللہ تمہاری نمازوں کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ بیٹا باپ کے دل کو راضی نہیں کر لے گا. اللہ الصمد آج کتنے بیٹے ایسے ہیں جو اپنے باپ کو تکلیف دیا کرتے ہیں, آج کتنے ایسے نادان ہیں جس ماں نے اپنے شکم کے اندر 9 مہینے تجھے برداشت کیا, 2 سال تک اپنے پستان سے اپنے لہو کو دودھ کی روپ میں تیرے حلقوم میں ڈال کر کے بڑا کیا, تجھے ہاتھ پکڑ کر کے چلنا سکھایا. اللہ الصمد ان ماں باپ کی قدر کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں اگر ماں باپ نہیں ہوتے تو بتا تو کہاں سے آتا, تجھے تو ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اے ماں تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چلنا بھی سکھایا ہے, تو نے مجھے بولنا بھی سکھایا ہے. ارے زمانے میں لوگ تو بہت بولتے ہیں, کوئی زبان سے گالیاں نکالتا ہے, کوئی کسی کی برائیاں کیا کرتا ہے, لیکن جس کی ماں نے اگر جس کی گھٹی میں مصطفیٰ کا پیار پلا دیا ہے, اگر زبان کھلتی ہے تو صلی اللہ پڑھتا ہے, اگر زبان چلتی ہے تو نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے, اس کی زبان کھلتی ہے تو خدا کی حمد کرتا ہے. ارے ایسے شخص کو اپنی ماں کی قدر بھی کرنا چاہیے اور ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ماں بولنا تو سکھایا ہے لیکن کسی دنیا دار کی تعریف نہیں, اگر تو نے سکھایا ہے تو مصطفیٰ کی نعت پڑھنا سکھا دیا ہے. ماں باپ کی قدر کرو. آج تم سمجھتے ہو اگر میں جوان ہو گیا, اگر مجھے طاقت مل گئی تو ماں باپ کو ٹھوکر مار دوں؟ نہیں صاحب ہو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے, قدم کے نیچے جنت ہے. قدم میں نہیں بتایا, جہاں ماں نے قدم رکھا ہے اس کے نیچے مصطفیٰ نے جنت کو بنایا ہے. ارے نادان آقا بتانا چاہتے ہیں, ارے جس کے قدم کے نیچے کا عالم یہ ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. تو بھول گیا, مصطفیٰ کے فرمان کو بھلا دیا تو نے. دولت کیا مل گئی,
पैसा क्या कमाने लगा? उस माँ की मोहब्बत से पूछ, जब घर में 2 रोटियां हुआ करती थी और तुम 2 भाई हुआ करते, तीसरी माँ हुआ करती थी, अगर माँ को भूख भी हुआ करती ना तो बेटे की मोहब्बत में कहती, बेटा तुम खा लो, मुझे अभी खाने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे भूख नहीं है। माँ भूखी सो जाया करती थी लेकिन तुम्हें खाना खिलाकर सुलाया करती थी। भूल गए? अगर दौलत मिल गई, आज बुढ़ापे में माँ, अगर बुढ़ापे की आलम में माँ बाप कुछ पैसे मांग लेने, दवाई के लिए ही मांग ले, तो बेटा खट से मना करता, रोज रोज कहां से लाके दूं दवाई तुम्हें, मैं तो तुम्हारी दवाई से तंग आ गया हूं। हाँ साहिब, वो ऐसे ही वाकिया ऐसे ही हुआ। एक ज़ईफा एक डॉक्टर के पास गई और जाकर के डॉक्टर को हाथ दिखाया ना, तो वो उस ज़ईफा को कमजोरी थी। डॉक्टर ने दवाई की पुड़िया बना के कहा, माँ घर जाके थोड़े फ्रूट भी खा लेना, थोड़ा सा दूध पी लेना। उस माँ ने अपनी आंखों को बंद किया और डॉक्टर के सामने गर्दन को हिला दिया। उसकी आंखों के आंसू बता रहे थे, डॉक्टर तू फ्रूट की बात करता है, मेरा बेटा मुझे पेट भर के खाना नहीं देता। ऐ डॉक्टर तू दूध की बात करता है, मैं बैठ जाती हूँ, चल नहीं पाती, अगर फंदा भी लगता है प्यास की शिद्दत होती है, मेरा बेटा एक गिलास पानी नहीं पिलाता। अरे नादानो, तुम्हें सोचना चाहिए, जिस माँ ने अपना लहू पिला पिला के तुम्हें प्रभान चढ़ाया है, आज माँ की खातिर थोड़े फ्रूट नहीं खिला सकते। आज तुम दोस्तों में 500,000 रुपए यूं ही चुटकियों में खर्च कर दिया करते हो। मैं कहता हूं अगर दोस्तों में 1000 भी खर्च किए हैं तो तुझे कुछ शायद ना मिले, अगर माँ की मोहब्बत में 1 रुपया भी खर्च कर देगा, अल्लाह इसके बदले में तुझे बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। अपनी माँ की कदर करो, अपनी माँ की कदर करो। एक वक्त था, एक जवान था, दिल में इश्क मुस्तफ़ा थी, नबी का प्यार भरा था, दिल चाहता था गुंबद खजरा का दीदार कर लूं। कौन नहीं चाहता मदीने को देखने को, किसकी तमन्ना नहीं होती कि मदीने को देख लूं। कौन नहीं चाहता काबे का तवाफ कर लूं, किसके दिल में तमन्ना नहीं होती कि मैं सफा मरवा पे दौड़ लगाऊं। सब चाहते हैं मुझे मैं हज करके आऊं, सबकी तमन्ना है मुस्तफ़ा के रोजे का दीदार करके आऊं। वो जवान था, एक माँ थी, दोनों थे। अल्लाह, उस माँ कुछ बूढ़ी थी, कमजोर थी। वो एक शख्स आता है, जवान बेटा माँ के पास आया, जब रात का सन्नाटा था, रात का सन्नाटा था, लोग हज के लिए काफिला बना करके निकल रहे थे। अल्लाह समत, जवान बेटा रात के सन्नाटे में अपनी माँ के पैर दबाना शुरू करता है और पैर दबाते दबाते माँ से पूछता है, माँ सब मदीने को जा रहे हैं, मेरे दिल में तमन्ना है मैं भी मदीना चले जाऊं, मैं भी मुस्तफ़ा की चौखट को देख के आऊं, मैं भी काबे का तवाफ करके आऊं। माँ ने कहा, बेटा इस साल मत जा, आइंदा साल चले जाना। ये बड़ी मोहब्बत किया करता था माँ से, बड़ी खिदमत किया करता था माँ की। माँ ने कहा ना इस साल मत जाना, तो बेटा मान गया। जूं तू करके उसने साल गुजारा, फिर लोग मदीना काफिला बना करके चलने लगे। ये फिर माँ के पास आके कहता, माँ एक साल गुजर गया है, लोग फिर मदीना जाने की तैयारियां कर रहे हैं, ऐ माँ मुझे इजाजत दे दो, मैं मदीना जाना चाहता हूँ। माँ ने फिर कहा, बेटा इस साल मत जा, आइंदा साल चले जाना। अल्लाह समद, बेटे ने माँ की बात को मान लिया, माँ की बात को तस्लीम किया। जूं तू करके इस साल को गुजारा। तीसरा साल आया, माँ ने फिर कह दिया, बेटा इस साल मत जा, आइंदा साल चले जाना। ये तीसरा साल भी बेटे ने जूं तू करके गुजारा, लेकिन दिल में इश्क नबी की तमन्ना है, दिल में काबे के तवाफ करने का हौसला है। अल्लाह समद, आज का बेटा अपने माँ बाप से कहीं जाता है तब बता के नहीं जाना चाहता, लेकिन उस बेटे को सलाम कर दूं जो बेटा जा रहा है मदीना। लेकिन माँ ने 3 बार इनकार किया, बेटे ने यह नहीं कहा मुझे क्यों नहीं भेजा जा रहा है, बेटा मानता गया। लेकिन चौथा साल आया ना, बेटा फिर कहने लगा, माँ मदीना सब जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। माँ, उस वक्त माँ की तबीयत अलील भी थी, माँ को बुखार था, माँ की तबीयत सही नहीं ही। जब बेटे ने कहा ना, माँ मदीना जाना चाहता हूँ, गुंबद खजरा का दीदार करना चाहता हूँ, माँ ने कहा, बेटा इस साल मत जा, आइंदा साल चले जाना। मैं बीमार हूँ, अगर मौत हो गई ना, मेरे जनाजे को कौन उठाएगा, मेरे जनाजे की नमाज कौन पढ़ेगा, मुझे कब्र के अंदर कौन उतारेगा। बेटा जब मेरी चाकनी का वक्त होगा, बेटे मुझे तेरी याद आएगी। इस साल मत जा, इस साल मत जा, आइंदा साल चले जाना। जब इतना कहा ना माँ ने, इस साल मत जा, अल्लाह समद, वो बेटा जलाल में आता है और माँ से कहता है, माँ तुझे मरना है तो मर जा, तुझे सड़ना है तो सड़ जा, मैं तो मदीना चाहता हूँ। उसने
माँ को ये जुमले कहे हैं, अपने घर से सफर का सामान पोटली में बांधा है, उसने एहराम भी रखा है, सफर का इंतजाम पोटली में बांध लिया है। माँ को जुमले बोल के मकान से निकला, माँ का दिल दुख गया। माँ ने अपने हाथों को उठा के कहा, मौला इस बेटे ने माँ के दिल को दुखा दिया है, माँ के दिल पे छुरियों को चला दिया है, ये कहता है मरना है तो मर जा। इस बेटे को मैंने बड़ी मोहब्बत से पाला है, लेकिन बेटे ने माँ के दिल को दुखा दिया है। मौला मेरे बेटे को गारत कर देना, इस नालायक को तबाह बर्बाद कर देना। ये माँ की जबान से जुमले निकले हैं। ये बेटा सफर करता जा रहा है, एक गांव से दूसरे गांव जाता है, ये दिन को भी चलता है, ये दोपहर को भी चलता है, ये शाम को भी चलता है। एक गांव से दूसरे गांव जाता है, दूसरे से तीसरे जाता है, चौथे से पांचवें जाता है, गांव के गांव पार करते चले जा रहा है। ये पैदल का सफर है, लंबा सफर तय किया है। एक मकाम ऐसा आया, वक्त इशा हो चुका है, नमाजी नमाज पढ़ चुके हैं, नमाजी नमाज पढ़ के निकल गए। शाम का टाइम हुआ, इशा का वक्त तो हो ही गया था, नमाजी तो निकल गए थे। उसने सोचा अब रात का टाइम है, अब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, अब मैं किसी के मकान पे क्या ठहरूं, ये मस्जिद है, मस्जिद में आराम कर लिया जाए, कुछ सजदे भी किए जाएंगे, रब की इबादत भी की जाएगी, अल्लाह की बारगाह में नमाज को अदा किया जाएगा, रात को क़याम होगा, सुबह को सफर तय कर लिया जाएगा। रात को मस्जिद में ठहरा है, उसने नमाज की नियत की है, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन होने वाली बात थी, जिस गांव के अंदर ये आने वाला नौजवान नमाज की नियत करके मस्जिद में खड़ा है, उसी गांव के अंदर एक शख्स के मकान पे चोरी हो जाती है। चोरी होती है, आपने सुना होगा या देखा होगा, जब पहले चोरी चोर किया करते थे तो दीवार में सुराख कर लिया करते थे, दीवार को काट लिया करते थे, उसमें से मकान का सामान निकाल के चोरी करके फरार हो जाते थे। जब वो मकान की, जब चोर आया ना, चोर जब दीवार को काट रहा था, उसने सामान को इकट्ठा किया, अभी उसने सामान को इकट्ठा किया है, घर वाले बेदार हो गए। जब चोर चोर की सदाएं लगाई तो कुछ लोग मोहल्ले के जाग गए। अब चोर का पीछा करना चाहा, इधर से लोग हैं, इधर से भी लोग हैं, चोर बीच में घिर जाता है। अब सामने मस्जिद नजर आती है, उसने आओ देखा ना ताओ देखा, सोचा कि इधर भागता हूं तो लोग खड़े हैं, इधर भी पकड़ा जाऊंगा। मस्जिद के अंदर घुसा और दीवार फांद करके फरार हो गया। अब लोग मस्जिद में घुसे, समझे ये सामने पोटली सामान की रखी है, ये नमाज का ढोंग बना के खड़ा हो गया है, ये वही चोर है, इसने चोरी की है। लोग खड़े हो गए, चलो नमाज का ढोंग सही, लेकिन नमाज को पूरा कर लेने दो। उसने नमाज को मुकम्मल किया है, लोगों ने गरेबान थाम लिया है। अल्लाह समझ जबान उसकी बंद हो गई, कुछ बोलना चाहता है मगर बोल नहीं पाता है, कुछ कहना चाहता है कुछ कह नहीं पा रहा है। उसको काजी के पास लेके जाते हैं, ये वो चोर है जिसने रात फला के मकान पे चोरी की है। अल्लाह समझ उसकी जबान तो बंद है, कुछ बोलना नहीं चाहता। अल्लाह समझ काजी ने कहा तू चोर है लेकिन जबान बंद है, अल्लाह का अजाब है। अल्लाह समझ जबान बंद हो चुकी है, जबान नहीं खुल रही है। काजी पूछता क्या तूने चोरी की है? अल्लाह समझ ना तो गर्दन से इशारा कर पा रहा है, न जबान से कुछ बोल पा रहा है। लोगों ने कहा इसकी पोटली भी है, इसी में सामान बंधा हुआ है। काजी ने कहा इसने चोरी की है ना, इसके हाथों को काट दिया जाए। चोर का अंजाम ये है, चोर की सजा ये है, उसके हाथों को काट दिया जाए। उसी जगह पर काजी के सामने उसके हाथों को काट दिया गया। एक शख्स खड़ा होता है, देखो ये वही चोर है जो मस्जिद को जानते हुए अपने पैरों से चल करके मस्जिद में गया है। इसने मस्जिद की बेहुरमती की है, इन पैरों से मस्जिद में गया है। काजी इन पैरों का क्या किया जाए? काजी ने हुक्म सुना दिया पैर काट दो। इसने मस्जिद के अदब को नहीं समझा, इसने चोरी करने के बाद मस्जिद के अंदर गया है, उसके पैरों को काट दिया गया। एक शख्स फिर खड़ा होके बोला इसकी आंखें बिनाई थी, ये जानता है कि मस्जिद है, ये जानते हुए आंखों से देखकर मस्जिद में गया, फिर नमाज का ढोंग रचाया है, इसकी आंखों का क्या किया जाए? कहा काजी ने आंखें निकाल दी जाएं, इसकी आंखों को फोड़ दिया जाए। आंखों को निकाल दिया गया, हाथ कट चुके हैं, पैर कट गए हैं, आंखों को फोड़ दिया गया, जबान खुली। वो नौजवान कहता काजी तेरी क्या औकात थी मेरे हाथों को काट देता, तेरी क्या ताकत थी मेरी आंखों को फोड़ देता, तेरे अंदर हिम्मत नहीं थी पैरों को काटता। ये तो मेरी माँ की बद्दुआ का असर है। मैं चोर नहीं, मेरे सामान को खोल करके देखो, इसमें सफर का इंतजाम का सामान है, इसमें एहराम रखा है। मैं मदीना जाना चाहता था, मैं काबे
काबे का तवाफ करना चाहता था, मैं सफा मरवा पे दौड़ लगाना चाहता था, लेकिन मैं माँ के दिल को दुखा करके आया था। मुझे पता चल गया जो अपनी माँ का नहीं होता है खुदा उसका नहीं हुआ करता है। अल्लाह समद लोगों को पता चला, उसका इलाज करे, आंखें तो वापस नहीं आ सकी, लेकिन जो भी उसका इलाज था बहरहाल उसका इलाज कराया। ना तो हाथ कट गए, हाथ जुड़ सके, पैर कटे हैं, पैर नहीं जुड़ पाए। लोगों ने उसका इलाज कराया, दुरुस्त हो गया। अब यूं मांग मांग करके खाता है, एक गांव जाता है, मांगता है, खा लेता है। अल्लाह समद ये मांगता है, इसकी जिंदगी देखो। आखिर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये जाने वाला जा कहाँ रहा था, इसकी नीयत कैसी थी, इसका सफर कौन सा था, इसका मामला कौन सा था। आप कहोगे मदीना जाना चाहता था। अब मैं पूछना चाहता हूँ, कितने ऐसे नौजवान हैं जो शराब के अड्डों पे जाते हैं, माँ के दिल को दुखा करके आते हैं, दोस्तों यारों के साथ जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, अपने साथियों के साथ गपशप तफरी के लिए जाते हैं, माँ बाप को तकलीफ दे के आते हैं। अरे जो मदीना जा रहा है, माँ को सता के जा रहा है, ना मुस्तफा ने अपना बनाया, ना खुदा ने अपना बनाया। ये फिक्र है उन लोगों के लिए जो माँ बाप को तकलीफ दे दिया करते हैं। अल्लाह समद ये मांग मांग करके जिंदगी को पूरी कर रहा है। इतना लंबा अरसा गुजरा, लोग मदीने से हज करके वापस भी पलट करके गांव आने लगे। एक दिन का वक्त था, ये माँ मुसल्ला बिछाकर सुबह के टाइम पर अपने रब से दुआ कर रही, मौला सारे लोग तो मदीने से आ गए हैं, सारे हाजी तो वापस आ गए हैं, ये मेरा बेटा नहीं आया। माँ माँ हुआ करती है, माँ माँ हुआ करती है। अगर बेटा जुल्म भी करता है, अगर बेटा तकलीफ भी दिया करती है, उसे जलाल तो आता है, उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन माँ का दिल बड़ा नरम हुआ करता है। उसने देखा ना हाजी वापस आ गए, मेरा बेटा नहीं आया। उसने रब की बारगाह में सजदा किया, अपने रब से फरियाद की, परवरदिगार आलम ऐ मेरे मौला मेरा बेटा नहीं आया, मेरे बेटे को मुझसे मिला दे, मेरे बेटे को वापस कर दे। इधर ये इंसान आंखें नहीं देख नहीं पाता है, बस उलट पुलटता है, लुलक पुलक करके अपनी जिंदगी को पूरा कर रहा है। बस मुकद्दर की बात थी, बदकिस्मत की बात थी, माँ ने दुआ की ना मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। इत्तेफाक से अपने ही गांव में आ गया। उसे गांव की पहचान तो ना थी, क्यों आंखों से नाबीना था। अपने ही मकान पे आके कहता, माई मुझे खाना दे दे, माँ मुझे भूख लगी है। इस जवान को ये नहीं पता मैं अपने ही मकान पे आया हूँ, इस जवान को ये नहीं पता अपनी माँ से रोटी मांगता हूँ। ये इसकी जो माँ है वो भी कमजोर है, उसकी आंखों की बिनाई भी कम हो गई है। जब उसने दरवाजा खोला ना, एक मांगने वाले की सदा थी, मुझे भूख लगी है खाना दे दो। वो माँ कहती है, बेटा रुक जा, रात की 3 रोटियां रखी हैं, मैं अभी लेके आती हूँ। माँ रोटी लेके आई कि ले बेटा खाना खा ले। अल्लाह समय इतना कहना था, वो रो करके कहता, माँ मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास हाथ नहीं, मैं खा नहीं सकता। ऐ माँ अपने हाथों से खिला देना, ऐ माँ अपने हाथों से लुक़्मा मुंह में डाल देना। अल्लाह समद कहा कि आ मेरे करीब आ जा। वो शख्स कहता है, जवान माँ मेरे पैर भी नहीं है, करीब नहीं आ सकता, और आपके करीब ऊपर नहीं आ सकता हूँ, मेरे पास आंखें भी नहीं है, मैं माँ तुझे देख भी नहीं सकता हूँ। अल्लाह समद माँ ने पूछा, उस ज़ईफ़ा ने पूछा, बेटा ये बता क्या तेरे पैर बचपने से नहीं है, क्या तेरी आंखें बचपने से नहीं है, क्या तेरे हाथ बचपने से नहीं है। उस जवान ने कहा, नहीं नहीं इस बात को मत पूछो, ये बचपने से तो थे, लेकिन मैं पिछले साल कुछ दिन पहले मदीना जाना चाहता था। मैंने माँ को ये कह करके जुमले कह करके निकल गया था, माँ के दिल को दिखा करके मदीना जाना चाहता था। मैं माँ का अपना लाल हूँ, माँ का लाडला हूँ, लेकिन माँ के दिल को दुखा दिया था। मैं घर से तो निकल गया, लेकिन माँ की बद्दुआ की वजह से मदीना ना जा सका। मेरा हाल ये हो गया, मेरे हाथों को काट दिया गया, मेरी टांगों को काट दिया गया। जब माँ समझी ये तो मेरा बेटा है, अपने बेटे को सीने से लगा के कहती है, मौला जब तूने मेरी उस बद्दुआ को कबूल कर लिया था कि मेरे बेटे को गारत तबाह पर बात कर लेना, आज फिर माँ दुआ कर रही है, मौला इसी वक्त मुझे भी दुनिया से उठा ले, मेरे बेटे को दुनिया से उठा ले। माँ की दुआ निकलनी थी, आसमान पर जाती है, अर्श आज़म से टकराती है, उसी वक्त में माँ बेटे की रूह कब्ज़ उनसई से परवाज़ कर जाती है, दोनों का इंतकाल हो जाता है। लेकिन साहिबो आपको सोचना चाहिए, ये वाक़या तो यहाँ पर ख़त्म है, लेकिन तेरी मेरी बात शुरू होती है। अब तुम्हें सोचना है, हमारी ज़िंदगी तो बाकी है, हम कितनी माँ की कदर किया करते हैं। बस यही बताना चाहता हूँ, जो मुस्तफ़ा कहते हैं, अगर जो माँ बाप
बाप की दुआ लिया करता है, माँ बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसी हुआ करती है जैसे मुझे मोहम्मद की दुआ उम्मती के हक में हुआ करती है। अगर तुमने अपने माँ बाप को सताया, समझो कि ना तुम मुस्तफ़ा की मोहब्बत को पा सकोगे, न तुमसे अल्लाह राजी हो सकेगा। अगर खुदा को राजी करना है तो अपने वालिदैन से मोहब्बत करो, तुम्हारे दिल में वालिदैन की मोहब्बत होगी, अल्लाह ताला भी तुमसे राजी हो जाएगा। हमें हर हाल में ना तो उनके बुढ़ापे से हमें घबराना चाहिए, न उन पे लान तान करना चाहिए, बल्कि जितनी खिदमत कर सको खिदमत कर लो। हमें उम्मीद है माँ बाप की दुआओं की बरकत से अल्लाह औलाद के मुकद्दर को संवार दिया करता है। इसलिए हम बाद में जाएं किसी वली के पास, बाद में जाएं किसी इमाम के पास दुआ कराने, पहले अपनी माँ के कदमों को चूम के कह दो, माँ तेरे बेटे का काम बंद होता जा रहा है, माँ तेरे बेटे के बाद काम बंद होता जा रहा, माँ दुआ कर दे। मेरा दिल कहता है, ईमान बोलता है, अगर माँ ने दुआ कर दी तो इंशाअल्लाह माँ की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला बेटे के बिगड़े कामों को बना देगा।